Welcome students to our video lecture series of geotechnical engineering. We are going to watch about the shear strength of soil. From the last lecture, we have understand the Mohr Coulomb theory and modify Mohr Coulomb theory. So today we are going to calculate or understand about the practicals from which we are going to calculate the shear strength of soil or getting the shear parameters like C and phi. So basically, I already told you there are four tests to calculate the shear strength of soil. So let's take a look. Okay, so you can see on your screen there are four type of tests for the calculation of shear strength of soil. First one is the direct shear test, which is also called box shear test 2. Another one is a triaxial compression test. Then after we are going to understand about the unconfined compression test, and last it is a vane shear test. So before starting any individual test and then understand about its advantage and disadvantage, I want to tell you something. From this all four practicals, there is one practical which is more useful than other, and it is a triaxial compression test. Because in that test, we can calculate cohesion and angle of internal friction, both. Or in other words, I can tell you that it is suitable for both clay and sand, मतलब cohesion less soil or cohesive soil. Either in other test like direct shear test or box shear test, we can calculate the shear strength for cohesion less soil. It is more suitable and practical for the cohesion less soil. In case of unconfined compression test, it is only suitable for the cohesive soil, in which there is a clay content is higher. And in the last inline shear test, uh, there is a suitability of this vine shear test is on uh, clay soil, which is highly uh, plastic or highly water content available on that type of soil. Means it is suitable for the that type of soil which is nearer to the river or ocean, etc. A pond. So that's why we are going to see all of these tests and keep in your mind that most suitable test for any type of soil. From that test, we can calculate proper C and phi value is triaxial compression test. So from the scenario, we can understand about the first direct shear test. ओके, तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट shear टेस्ट का एप्रेटस की फिगर आपको दिख रही होगी, राइट? जो आपकी बुक में भी दी है आपको। ये एक बॉक्स होगा यहाँ पे डायरेक्ट shear टेस्ट का, ठीक है? ये बॉक्स एक प्लेट के ऊपर होगा, सरफेस होगी उसके ऊपर होगा, जो रोलर जो दोनों के बीच में रोलर्स होंगे। ओके, ये बॉक्स यहाँ से ये बीच में आपको एक लाइन दिख रही है, शियरिंग फोर्स जनरेट होने वाली लाइन, राइट? वहां से ये बॉक्स अलग हो सकता है, मतलब सेपरेट हो सकता है। ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, सो जनरली होता क्या है, मैं आपको लाइनिंग से समझा सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स, ठीक है? अब हो क्या रहा है, यहाँ से मैं फोर्स दे रहा हूँ, ये यहाँ पे हमने यू आर्म लगाया है, ये प्रोविंग रिंग है, ठीक है? ये बीच में पूरी सॉइल भरी है, ये पूरा सॉइल सैंपल है। ये दो अलग लेवल है, ये वाला जोन अलग है और ये वाला जोन अलग है। अब मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स रखा है, तो यहाँ पे रोलर के कारण ये आगे जाएगा बॉक्स, ठीक है? और बॉक्स आगे जाएगा तब उसके कारण क्या होगा कि यहाँ प्रोविंग रिंग के ऊपर थोड़ा बहुत लोड आएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कनेक्टेड है दोनों। क्लियर? अब मैं यहाँ से जितना लोड यहाँ पे दूंगा, उतना इस डायरेक्शन में दूसरा लोड जनरेट होने वाला है ना? तो ये यहाँ से मूव कर रहा है और इधर से भी लोड प्रोविंग रिंग पे लग रहा है। इसके कारण क्या करेगा, ये इतना ही लोड कैरी कर पाएगा जितनी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ होगी। फिर क्या होगा, सॉइल शियर में फेल हो जाएगा, तो ये आगे चला जाएगा, ठीक है? और ये ऐसे रिलीज हो जाएगा। वो पता कैसे चलेगा, हमारे प्रोविंग रिंग है यहाँ पे, तो बीच में
गेज जैसी सिस्टम दी होती है प्रूविंग रिंग में, वो गेज क्या होता है फ्रीक्वेंटली मूव होने लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें पता चल जाएगी कि लोड रिलीज हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे दो जगह से हमें लोड दे रहे हैं सॉइल के ऊपर, एक तो होगा नॉर्मल लोड जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, माइनर, और ये होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये होगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा है, हम शियर फोर्स जो यहाँ पे दे रहे हैं, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस पे हम क्या करते हैं, एक लोडिंग पैड है उसके ऊपर हम बॉल रखेंगे, उसके ऊपर हम नॉर्मल लोड नीचे से कैलकुलेट क्या करेंगे ऊपर देंगे बॉक्स शियर टेस्ट के अंदर, ठीक है। अब सैंडी सॉइल है, वाटर कंटेंट है, उसको उसके अंदर डायरेक्ट हमने फील्ड पे से लिया है तो ऑब्वियसली मॉइस्चर कंटेंट होगा, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर पोरस स्टोन प्रोवाइड कर देते हैं। पोरस स्टोन में क्या होता है कि पानी बाहर निकलने की फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। तो एक चीज दूसरी ध्यान में रखने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसकी फिगर, ये जो सॉइल सैंपल था मैंने बताया था आपको, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, ये शियर फोर्स यहाँ पे जनरेट हुआ, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 वाली इफेक्ट लगने वाली है यहाँ पे। सिग्मा 1 मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, सिग्मा 3 मेरा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। क्लियर। मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी किया है, आपका प्लेन है पूरा एम एन, तो मैंने बोला है प्लेन ऑफ शियर फेलियर, देन एन इज अ वर्टिकल नॉर्मल लोड और एफ इज अ हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स, where the sigma 1 is major principal stress and sigma 3 is minor principal stress. Now from this figure we can make this type of Mohr circle from this value, right? A and B are what? Sigma 1 and sigma 3. So there is something sigma 3 and there is something sigma 1. Like sigma 3 मतलब ऑन से उसके ऊपर स्ट्रेस रखा है कोई भी वो, और सिग्मा 1 मतलब जहाँ पे सॉइल हमारी फेल हो रही है वो जो भी वैल्यू मिलेगी वो मेरा सिग्मा 1 हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि समझाऊं आपको, ये जो फोर्स है वो मेरा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, 0.3 0.1 0.2 ऐसे में लोड रखूंगा, वो मेरा कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ से जो फोर्स आ रहा है सिलेंडर बॉक्स शेयर के अंदर, वो मेरा धीरे 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 इंक्रीज होगा। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक मेरी सॉइल फेल नहीं हो जाती, फेल होते ही वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है। अब वो लोड नहीं लेगा, वो रिलीज कर देगा, तो जहां तक वो लोड ले रहा है वो वैल्यू मेरा सिग्मा 1 हो जाएगा, तो मुझे कुछ यहाँ पे मिलेगी। अब दोनों की रेडियस फाइंड कर दूंगा मैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 वाले इक्वेशन से, और मैं मोर सर्कल प्लॉट कर दूंगा। अब मुझे पता है यहाँ पे रेडियस से लेके मेरा अल्फा जितना एंगल होगा, ठीक है, वो मुझे क्या देने वाला है, पी पॉइंट देने वाला है, ठीक है, मतलब फेलियर जोन देने वाला है। अभी मेरा मैक्सिमम फेलियर पॉइंट यहाँ पे, पर कभी मैक्सिमम फेलियर पॉइंट से पास नहीं होती लाइन, ठीक है। अलग अलग मैं सिग्मा वर्सेस टाउ की वैल्यू फाइंड कर दूंगा यहाँ से। सिग्मा वर्सेस टाउ की वैल्यू अलग अलग कैसे फाइंड करूंगा, आपके पास इक्वेशन है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 साइन 2 अल्फा वाला जो टाउ का है, दूसरा सिग्मा का है, उसके अंदर मैं सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की अलग अलग वैल्यू लूंगा। पहले ये लोड है मेरा, वो मान के चलो 1 kg लिया, फिर 2 kg लिया, 3 kg लिया, 4 kg लिया, तो अलग अलग मुझे सिग्मा 3 की मिलेगी। हर एक के लिए मैं अलग अलग सिग्मा 1 की वैल्यू मिलेगी, जो भी सिग्मा 3 लूंगा उसके लिए मुझे सिग्मा 1 की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। उसके ऊपर से मेरे एक सिग्मा वर्सेस टाउ का प्लॉट बन जाएगा। क्लियर। वही वैल्यू के लिए वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे, मुझे एक लाइन मिलेगी, वो लाइन कहीं ना कहीं ये मोर सर्कल पे टच हो रही है, वो मेरा पॉइंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है, फेलियर पॉइंट। क्लियर है। हॉरिजॉन्टल के साथ उसका डिस्टेंस कितना है वो भी मुझे पता चल जाएगा। ये लाइन में यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका एंगल कितना बन रहा है, तो मेरा फाई भाई ओरिजिन से उस लाइन का डिस्टेंस मेजर कर दूंगा, वो मुझे देगा सी। क्लियर। तो ऐसे हम मोर सर्कल के ऊपर से सिग्मा वर्सेस टाउ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और उसके ऊपर से में हम सी और फाई भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट के अंदर क्या दिक्कत है और क्या उसके फायदे हैं, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ सीयर टेस्ट। सो द सैंपल preparation is easy, the test is simple and convenient। तो हम डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर से कोई भी सैंपल उठा सकते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अंदर रखने की, क्योंकि बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट उसके अंदर सैंपल रख देना है हमें, ठीक है, तो इजीली हम कर सकते हैं ये चीज़। As the thickness of the sample is small, the drainage is quickly and the pore pressure dissipation will be very rapid. Thus,
The consolidation drain and the consolidation undrained test take relatively small period. Okay, so the sample size is very less. It is very small size of sample. It has 6 centimeter by 6 centimeter और जितनी उसकी हाइट होगी और थिकनेस होगी, सॉरी लेंथ होगी। तो क्या है कि ऐसे अंदर जो ड्रेनेज है वो फटाफट हो जाएगा, इसके अंदर पोरोस्टोन में से फटाफट पानी निकल जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट है वो तो ऑब्वियसली ज्यादा ही स्पीड में होने वाला है, बट केवल कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट भी फटाफट हो जाएगा, तो हमें फटाफट उसके रीडिंग मिल जाएंगे। अब बाकी टेस्ट में क्या होता है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। इट इज आइडियली सुटेबल फॉर द कंडक्टिंग ड्रेनेज टेस्ट अंडर द कोहेजन लेस सॉइल। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था जब मैंने टेस्ट के बारे में बताया, ये सुटेबल होगा सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल के लिए। क्ले के अंदर इसके रीडिंग काफी वेरी करते हैं, ठीक है। एपेटस इज रिलेटिवली चीप, तो जो इसका इंस्ट्रूमेंट है उसकी प्राइस बाकी के इंस्ट्रूमेंट से थोड़ी कम रहती है, ठीक है। ऑटोमेशन वाले पार्ट बहुत कम है, इसके कारण इसकी प्राइस बहुत कम रहती है। तो ये हो गए उसके फायदे। अब हम उसके नुकसान के बारे में बात करेंगे, मतलब नुकसान मतलब कौन सी चीज उसके अंदर कमी है, कमियों के बारे में बात करेंगे। सो द स्ट्रेस कंडीशन आर नोन ओनली एट द फेलियर। ओके, मतलब स्ट्रेस की जो कंडीशन है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ फेलियर पॉइंट पे पता चलेगी। दूसरी चीज है द ओरिएंटेशन ऑफ द फेलियर प्लेन इज प्री डिटरमाइन, दिस में नीड बी वीकनेस प्लेन, राइट। मतलब जो फेलियर प्लेन है वो पहले से हमें पता चल जाता है, और ऑब्वियसली हमें पता है कि वो सबसे जो वीकेस्ट प्लेन होगा वही वहां से ही फेल होने वाली है सॉइल, राइट। मतलब जो बीच में हमने सैंपल दिखा है वो हमें पता ही है कि वहां से ही फेल होगी, क्योंकि बाकी सब फिक्स रहने वाला है, ठीक है। मूव करेंगे सिर्फ ऊपर का अलग होगा और नीचे का पोर्शन अलग हो जाएगा, तो वो मेरा फेलियर प्लेन फिक्स है, प्री डिटरमाइंड है। देन आफ्टर कंट्रोल ऑन द ड्रेनेज condition is very difficult. Consequently, only the drain test can be conducted on highly permeable soil. मतलब जो ड्रेनेज कंडीशन है उसको कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। ओनली सिर्फ ड्रेन टेस्ट इसके ऊपर इजीली कहते हैं कि हो सकता है, वो भी परमिएबल सॉइल हुई तो। कोहेजन लेस जनरली परमिएबल होती है, बट अगर उसके अंदर क्ले कंटेंट और ये सब ज्यादा हुआ तो ये टेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है हमें, ठीक है। जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है ऐसे टेस्ट में ये ज्यादा सुटेबल रहेगा बॉक्सियर टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर हम पानी स्टोर करके रखना ये सब थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ओपन पूरा जार है इसका, ठीक है, ओपन एपरेटस है ये। द मेजरमेंट ऑफ पोर वाटर प्रेशर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे हम पोर वाटर प्रेशर के इजीली परमिएबिलिटी परमिएबल सॉइल है, इजीली परकोलेट हो सकता है पानी कहीं पे भी पोरस स्टोन से, तो हम उसके कारण पोर वाटर प्रेशर मेजर नहीं कर पाते यहाँ पे ओपन एपरेटस होने के कारण। The side wall of the shear box cause lateral strain on the specimen and do not allow it to the deform laterally. जैसे हमने बताया कि यहाँ पे हमें फेलियर प्लेन ऑलरेडी पहले से पता चल जाता है, तो क्या होता है कि जो साइड की जो वॉल्स है वो स्पेसिमेन पे लेटरल स्ट्रेन नहीं लगने देती, ठीक है। तो वो कभी लेटरल में डिफॉर्म नहीं होगा, क्लियर। लेटरल डायरेक्शन में ये नहीं होगा, फिर इंक्लाइन डायरेक्शन में ही होने वाला है, हमको पता है ये चीज, बॉक्स को देख के ही पता चल जाएगा, आप देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो ये थे उसके फायदे और नुकसान, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे प्रैक्टिकल के बारे में, वो है आपका अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्ले वाले मटेरियल के अंदर काम आएगा, क्ले सॉइल के अंदर काम आएगा, मतलब कोहेजन लेस सॉइल के अंदर काम आएगा। इस प्रैक्टिकल में एक हैंडल यहाँ पे हैंडल दिया है, या फिर हम हाइड्रोलिक जैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है। एक रॉड है, यहाँ पे प्रूविंग रिंग प्रोवाइड किए, एक डायल गेज चाहिए, एक मूविंग प्लेट होनी चाहिए, ठीक है, जिसपे डायल गेज रीड कर सकते हैं हम लोग, और कोनिकल सीटिंग्स चाहिए दो, ऊपर और नीचे। यहाँ पे बीच में हम लोग एक सॉइल का क्या करेंगे, सैंपल बनाएंगे यहाँ पे। ये सॉइल के सैंपल के ऊपर लोड आएगा, ये हम हैंडल घुमाएंगे तो, ठीक है। कब तक ये लोड लेगा, जब तक ये सॉइल सैंपल मेरा पिचक नहीं जाता, मतलब टूट नहीं जाता, क्लियर।
काफी ब्लैक कॉटन सॉइल होगी तो ये पिचकने वाला है, पर जो लो प्लास्टिक सॉइल हो गई तो ये टूट जाएगा, बीच में से क्रैक हो जाएगा या फिर लिटरल क्रैक होगी, वो हमें पता नहीं। ठीक है, तो ये कब तक लोड कैरी कर पाएगा? लोड कैरी आएगा तो ये जो यहाँ पे बीच में जो गेज है उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग इंक्रीज होंगे यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही फिल होगा तो ये वापस बैक चले जाएंगे रीडिंग। तो यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट हो रहे, ऐसे 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 करके नीचे आ रहे, जैसे ये सॉइल सफल फिल होगा वैसे वापस बैक होने लगेंगे धीरे से। और डायल गेज रीडिंग तो हमारा क्या है, यहाँ से हम हैंडल घुमाएंगे वैसे वैसे ये इंक्रीज ही होते जाएगा। क्लियर? तो इस हिसाब से हम लोग इसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं और हम सॉइल के क्या कहते हैं सीयर स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं। हम लोग प्रोविंग रिंग और डायल गेज से रीडिंग कैसे लेना है वो हम प्रैक्टिकल सेशन में और ज्यादा बेटर वे में समझेंगे। फिलहाल तो हम थियरी ही समझ रहे अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट की। अब इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो पहले तो मेरिट्स ऑफ अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट। So the basically first is the taste is very quick, simple and convenient. ठीक है, फटाफट सॉइल सैंपल तोड़ देंगे, फटाफट से रीडिंग मिल जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो, और ये इजीली हम उसके सैंपलिंग कर सकते हैं मोल्ड का। मोल्ड की सैंपल की साइज होती है 7.8 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है, और 3.6 सॉरी 3.8 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है, और 7.2 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। तो इस केस में क्या रहता है कि एक्सपेक्ट रेशियो ऑलवेज 2 रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायमीटर 38 है और हाइट 7.6 सेंटीमीटर, तभी आपको पता है कि 3.8 टू ज़ा 7.6 हो जाएगा। क्लियर? तो एक्सपेक्ट रेशियो क्या होगा? 2। तो हम लोग ऑलवेज एक्सपेक्ट रेशियो 2 रहेगा वैसे ही सैंपल बनाएंगे। अभी कैसे किसी केस में हमारे पास सैंपलर नहीं है तो हम 3.8 और 7.6 वाला नहीं फंडा यूज कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास पाइप वगैरह सब अवेलेबल रहती है तो उससे भी हम मोल्ड बना सकते हैं। मतलब उसमें एक्सपेक्ट रेशियो रख देंगे अप्रोक्सीमेट 4 to 8, 8 हाइट रखेंगे, डायमीटर 4 रखेंगे, तो भी एक्सपेक्ट रेशियो क्या हो रहा है? 2 ही हो रहा है। क्लियर? दूसरी चीज है यहाँ पे समझने के लिए कि द टेस्ट इज आइडियली फॉर द मेजरिंग अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ इंटैक्ट सैचुरेटेड क्लेस। ठीक है, तो इट इज ओनली आइडियल फॉर द अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ। ओके, वही कैलकुलेट करता है सैचुरेटेड क्ले की। देन द sensitivity of the soil may be easily determined by the conducting the test on undisturbed sample by the and the on the remolded sample। मतलब हमने इंडेक्स प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में सेंसिटिविटी ऐसा टर्म्स पढ़ा था, याद हो तो आपको, तो उसमें हमने दिखा था कि सेंसिटिविटी का इक्वेशन ये है, एस का इक्वेशन, कि अनकन्फाइंड कॉम्बर्सन टेस्ट ऑफ नेचुरल सॉइल अपॉन अनकन्फाइंड compressive strength of remolded soil, राइट? तो जो ग्राउंड पे से लाए उसका तो सॉइल सैंपल का हम अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट डायरेक्टली मेजर कर सकते, सैंपलर ट्यूब से कलेक्ट करके सैंपल, और वही सॉइल सैंपल को हम ओवन ड्राई करके उसका मोल्ड बना के वापस भी उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये उसके हो गए मेरिट्स। अब बात करते हैं डीमेरिट्स के बारे में। डीमेरिट्स इसका है कि द टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन कोर्स ग्रेन सॉइल सच एज सैंड एंड ग्रेवल्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम उसका मोल्ड नहीं बना सकते हैं, तो हमें उसकी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। द टेस्ट ऑल्सो कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन द फिशर्स क्ले। तो यहाँ पे आप लोग सोचने वाले हो कि भाई फिशर्स क्ले मतलब क्या? फिशर्स मतलब क्रैक्स, राइट? जिस क्ले सैंपल में ज्यादा क्रैक्स रहती है तो ऐसे केस में ये टेस्ट ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, काफी बार क्या करते हैं कि फिशर्स के कारण वो कॉम्पैक्ट हो जाता है सॉइल और लोड कैरी नहीं कर पाता, तो क्या होता है वो कॉम्पैक्ट भी होता है, साथ में उसका जो रीडिंग वो बैक जाने लगता है, और जैसे ही फिशर्स वो क्या कहते हैं फील हो जाएगी कॉम्पैक्ट होने के कारण, तो वापस वो लोड कैरी करना स्टार्ट करते हैं, तो हमको क्या कहते हैं काफी बार मिसलीड कर देते हैं उसके रीडिंग्स, फिशर्स क्ले होती है तो, राइट? ये भी एक चीज है। एंड लास्ट में यहाँ पे ऐसा है कि द सॉइल फॉर विच द फाई इज इक्वल टू 0 द टेस्ट रिजल्ट में बी मिसलीडिंग। मतलब सॉइल जिसकी फाई की वैल्यू मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो ऐसे केस में भी ये क्या करता है कि जो रीडिंग्स है शियर स्ट्रेंथ की वो हमें
मिसगाइड करेंगे, मिसलीड करेंगे। मतलब 5-0 कब होगा? जब प्योरली कोहेसिव सॉइल होगी। तो ऐसे केस में क्या है, सॉइल सैंपल फेल नहीं होता है, क्रैक्स हमें दिखती नहीं है। जबकि ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो क्रैक्स अंदर होती है वो हमें दिखती नहीं है। वो क्या करते हो, कॉम्पैक्ट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, डबता ही रहेगा सॉइल सैंपल, वो टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में भी हमें रीडिंग मिलना बहुत क्या कहते हैं कि डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए आईएएस में कुछ क्राइटेरियाज भी है कि जो सैंपल है वो 10 या 20% से ज़्यादा डिफॉर्म हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रीडिंग कैंसिल कर देते हैं। क्लियर? ये चीज़, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ है जो आईएएस कोड के ऊपर से लेनी, वो मैं जब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसका अलग से वीडियो लेक्चर होगा, उसके अंदर मैं आपको ये सब चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो हम मेरिट्स और डीमेरिट्स, अगर एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज द अनकन्फाइंड कंपैरिजन टेस्ट, तो आपको मस्त फिगर ड्रॉ करनी है जो मैंने आगे आपको दिखाई, ये वाली। ठीक है, और साथ में उसको एक्सप्लेन कर देना है। ऑब्वियसली एक्सप्लेन ऐसे करना है कि हमारा जो सॉइल सैंपल है उसके अंदर ऑलवेज हम 4.75 mm से पास की हुई सैंपल का सॉइल ही लेते हैं। ठीक है, या फिर क्ले हो या सैंड हो। ठीक है, हर एक के अंदर बॉक्स या टेस्ट हो, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट हो, 4.75 mm में से पास की हुई सॉइल सैंपल लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मोल्ड के अंदर भर देंगे, अपना जो भी OMCMDD परफॉर्म करने वाला मोल्ड है उसके अंदर। ठीक है, मतलब 3.5-4 ग्राम लेंगे, और उसको क्या करना है, पहले तो ग्राउंड पे से कलेक्ट करके ओवन ड्राई करेंगे। ओवन ड्राई करने के बाद हम 4.75 mm की ट्यूब में से पास करेंगे। पास करने के बाद हम उसके मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर वो मोल्ड में भर देंगे। वो मोल्ड में से हम लोग एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे मोल्ड में, और उसमें से वो ट्यूब में से ये सैंपल हम कलेक्ट करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। ठीक है, फिर वो सैंपल हम यहाँ पे रख देंगे इक्विपमेंट के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाया था, और उसके ऊपर हम लोड देना स्टार्ट करेंगे। जब तक लोड देंगे, जब तक तब तक लोड देना है जब तक ये सॉइल सैंपल हमारा फेल नहीं हो जाता और रीडिंग हमारे बैक नहीं चलने लगते। ठीक है, तो ये पूरी उसकी प्रोसीजर हो गई। इसके अंदर आप लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स ऐड कर दोगे तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर? तो बाकी जो भी टेक्निकल टर्म्स है, जो प्रैक्टिकल हम करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा जो इक्वेशन है वो सब। क्लियर? तो एक आज हमने 2 प्रैक्टिकल पढ़े। फर्स्ट वन था हमारा डायरेक्ट शियर टेस्ट के बारे में, हम थोड़ा आज देख लिया हमने। क्लियर? और दूसरा था अनकन्फाइंड कंपैरिजन टेस्ट। अब ये जो बाकी के 2 टेस्ट है, फर्स्ट वन अपना ट्राइएक्सियल कंपैरिजन टेस्ट एंड दो वैन शियर टेस्ट, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वरना थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।